A very good evening, sir. Yeah, very good. Myself, Abhishek Chaudhary, welcomes you on College Dunia platform for an initiative Thoughts on Education. So, my very first question is: you have held key positions at education institutes throughout your professional career. So, what are the key factors that keep you connected with the education sector? Basically, so far as education is concerned, this is the priority of our trust, the sponsoring body, which has established this institution. So basically, going by the intent of the trust and the basic motive behind establishing that trust is imparting education. So guided by that, we established that teacher education institution, and mainly we are providing teacher education, that is right from diploma, that is DLED, to B.Ed, and then M.Ed. So that's the thing. And basically, so as my personal case is concerned, since I have a, can say, kind of academic acumen and interest with the teaching throughout my, can say, since my student life, that is why I also took a lot of interest in personally in establishing teacher, in establishing educational institutions. Okay, that's great, sir. So, moving to the next question. The education systems in India and other foreign countries are structured very differently. So, in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your college? So far as in our college, we are maintaining the global standard, we can say, because syllabus is also whatever has been provided by the university, that is meeting all the present and future requirements. So we are making students competent enough so that they may be placed anywhere. That's why some of the students who are pass outs from our college, they have got international placements as well, with family visa status. So this shows high quality of the products also, and the teaching system here. So we are focusing largely on these parts, that the quality aspect is taken care, and students passing out from here, they get good placements. That is why हमारे बहुत सारे students अच्छे organizations में, बड़े organizations में उन्होंने अच्छे positions हासिल किए हैं. कई हमारे alumni और कई हमारे teachers भी जिन्होंने यहाँ पर education impart किया है, now they are in the policy making bodies of the universities. और कई लोग प्रिंसिपल्स हैं अभी आज कई B.Ed कॉलेजेस में, व्हाट टू टॉक अबाउट CBSE स्कूल्स. तो कई जगहों पर है हमारे, दिस इटसेल्फ स्पीक्स लाउडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टीट्यूशन में ने क्या दिया है और क्या कर रहे हैं. ये जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उनके ऊंची जगहों पर, दिस इटसेल्फ स्पीक्स लाउडर. और न केवल झारखंड में, बल्कि झारखंड से पास करने के बाद ये देश के दूसरे हिस्से में भी सेवा दे रहे हैं और उसे अगले जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. Okay, that's great. So, काफी अच्छी जनरेशन तैयार है. And so, moving to the next question, how does the curriculum of your university ensure the best practice of industry? अच्छा, देखिए, आपने फिर क्यूरिकुलम की बात की. मैंने पिछले आपके पिछले सवाल के जवाब में भी क्यूरिकुलम एस्पेक्ट को मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ने जो क्यूरिकुलम डिज़ाइन किया है, चाहे वो B.Ed का हो या M.Ed का हो, ठीक है, इवन DLED, यस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट. हम लोग फ्यूचर्स में इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा सोच सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन जो कुछ भी सिलेबस है प्रेजेंट टाइम में भी, दैट इज़ बाय एंड लार्ज मीटिंग आउट द रिक्वायरमेंट्स. और यस, ये तो हमेशा होता है कि स्टूडेंट्स का अपनी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कैसी की है. वो सिलेबस तो एक जनरल गाइडलाइंस है. अगर आप उससे ज़्यादा भी अगर बढ़ करके अगर आप अपने लेवल को अगर ऊंचा करते हो, तो दिस अल्टीमेटली गोइंग टू बेनिफाई देम ओनली. तो हम लोग हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि सिलेबस को एक सेंटर में मान के रखें फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से कि थिंग्स विल मूव अराउंड दिस. लेकिन सिलेबस इज अ जनरल गाइडलाइंस, और सिलेबस के हिसाब से फिर और भी हम लोग गाइड करते हैं कि देखो, जो सजेस्टेड बुक्स हैं, ठीक है, जब आप ओरिजिनल बुक्स पढ़ते हो, ओरिजिनल राइटर की बुक पढ़ते हो, तो दैट इंक्रीजेज योर होरिजन. तो वो आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाता है. तो जैसे अब हम लोग M.Ed कर रहे हैं, तो M.Ed करा रहे हैं, तो M.Ed में हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि सिर्फ M.Ed पर मत फोकस करो. द डे यू आर टेकिंग एडमिशन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो
to crack net, then only you take admission in MAT. Otherwise कोई point नहीं है MAT करने. तो we try to make them prepare that way. तो हम लोग उनको उसके हिसाब से तैयारी कराते हैं. And students are taking advantage of this. Okay. Awesome. So, moving to the next question. Any insights into how your university could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? Yes, I mean, in our institution, since the course is such a common course, BA, DLED or MAT, that people of all economic strata, they take admission in this course. तो ये बहुत बड़ा कोर्स या बहुत कॉस्टली कोर्स तो है नहीं, बहुत सस्ता कोर्स है. आप ये देखिए कि जो एक CBSE स्कूल में पढ़ाने का जो खर्चा लगता है, लगभग उसी तरह खर्चे में DLED, BEd, MAT कोर्सेज होता है. तो ये कॉस्ट वाइज भी बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है, इसलिए काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ होता है. और मोर ओवर टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, तो टीचिंग के लिए लोगों का अपना एक अलग फैसिनेशन है. तो उसकी वजह से हर इकोनॉमिक स्टार्ट के लोग आते हैं. एंड वी आर वेलकमिंग एवरी पीपल. जहाँ तक हम लोगों के सपोर्ट का है, तो वी प्रोवाइड देम लॉट ऑफ सपोर्ट. चूँकि ट्रस्ट ही एस्टेब्लिश इसलिए हुई है, इसलिए इवन पुअर पीपल दे गेट एडवांटेज ऑफ फी रिलैक्सेशन. उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो पर्टिकुलरली ओरिएंटेड है SC, ST, BC, OBC के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए. तो पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज स्कीम्स एज वेल. So, in the form of Scholarships from different government bodies, as well as our own trust is providing them certain fee relaxations. तो उस तरह से हम लोग सारे इकोनॉमिक क्लास के लोगों को कैटर कर रहे हैं. एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, creed, religion, sex, they all are coming into in our institution. तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन के अंदर में, though it's a minority institution, but it still accommodates all class of people. It's not only for the minorities. Because the management is also we are catering to all sections of the people. और वो आप हमारे enrollments में देख सकते हैं. आप we are having all records, so you can go through, or you will see to it that we have got a good mix of all class. Okay, तो सर काफ़ी अच्छी बात है. तो मतलब सेंट्रल से भी बच्चों को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रही है एंड फ्रॉम द ट्रस्ट से भी सपोर्ट. Right. That's great, sir. So, what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? So far as my role is concerned, yes, in the capacity of the secretary of the institution and as a founder trustee, co-founder trustee, my role is certainly big. I understand that, yes, I have to do a lot for the institution, and I try to do all those things and try to justify those. तो पहली चीज़ जैसे एज एन एम्प्लॉयर अगर हम देखें, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एम्प्लॉयर कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं दे आर गेटिंग गुड रिमोनरेशन. तो आप देखेंगे कि वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन झारखंड जहाँ पर हमने EPF स्कीम्स लागू किया. ग्रेचुइटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस लिंक्ड उनका EPF है, फैमिली पेंशन स्कीम है. तो ये हमने एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए चीज़ किया. झारखंड में किसी कॉलेज में ये स्कीम जब हम लोगों ने लागू किया था तो नहीं थी. और एंड वी आर पायनियर ऑल्सो. तो हम लोगों ने शुरू में इसको किया था. और टू माई इंफॉर्मेशन अभी भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की चीज़ें नहीं लागू हैं. तो ये हमने एज एन एम्प्लॉयर किया. फिर स्टूडेंट्स के लिए नेचुरली है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट. तो वहाँ पर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. अब जैसे अभी सिचुएशन चेंज हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, तो वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर यूनिवर्सिटी कि हम लोगों ने तुरंत से ऑनलाइन मोड पर ट्रांसफ़र कर दिया. और ऑनलाइन मोड बिल्कुल शुरू से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया. आई बिलीव कि फ्रॉम 2 और 3 अप्रैल इटसेल्फ 22-23 को लॉकडाउन लगा है. और 2-4-5 दिन हम लोगों ने जस्ट वेट किया कि क्या चीज़ें होंगी, क्या ये चीज़ क्या है. बेसिकली सिंस इट वाज अ entirely new thing, it took us around 10 days to understand the situation. लेकिन हम लोगों ने तुरंत अपने आप को अडॉप्ट किया विद द चेंज, और तुरंत हम लोग ऑनलाइन सिस्टम पर आ गए. एंड वंस द थिंग विल चेंज, वी विल गो फॉर द ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम इज टू कम. तो एज ए कैन से एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई अंडरस्टैंड माई रोल कि हमको स्टूडेंट्स के कैरियर को कितना फोकस करना है, उनके एम्प्लॉयबिलिटी को कितना ध्यान पर रखना है. तो वी हैव टू गिव अ गुड result, good output. That's why you will
come to know कि अलिकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज झारखंड का एक established you can say established name है और अलिकरा को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं. So we want to establish our hegemony in the field of teacher education. Yes, sir. So what do you think should be the college's top priority over the next 10 years? Again, the same thing is there. Yes, or I mean, not 10 years, just you consider 1 year or next 2 year or next 3 year. Our priority is the same. The priority is just to keep the quality products. Quality aspect is the main priority. Yes, we will try to make the institution a center of excellence. You can say if you consider it's a long-term planning. So we see to make a center of excellence, and in the days to come, maybe a deemed university for teacher education itself, because teacher education has not been given much priority. There are medical universities. If you see on the national perspective, there are some medical universities or engineering colleges there which are deemed university itself. Like we have got ISM over here. So a single stream they are having. They are not the multi-specialty kind of thing. So we want in teacher education to establish our hegemony. So that is the priority which we are looking for. So what would you like people to know about your college that they may not know? देखिए, अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के झारखंड बनने के बाद का पहला कॉलेज है. 2000 में झारखंड कार्व आउट हुआ था और कॉलेज भी 2000 में ही एस्टैब्लिश हुआ था. तो पीपल नो ऑल अबाउट अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज. हमको नहीं लगता है कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा नई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इसको अदर कॉलेज से जो डिस्टिंक्ट करती हैं. एक तो ये कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 2000. Number 2 कि college is having all teacher education courses like B.Ed, D.El.Ed, M.Ed. And then college has 150 seat intake for B.Ed, जो दूसरे colleges में नहीं to my informations 150 seats नहीं है. नॉर्मली सारे colleges में 100 seats है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज. One more thing which is also very important कि ये कॉलेज बिल्कुल शुरू के दिनों से परमानेंटली एफिलेटेड है. For its B.Ed course, for its D.El.Ed course और M.Ed के लिए परमानेंट एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन हो चुके हैं, क्योंकि M.Ed भी अभी पिछले 2-3 साल से चल रहा है और M.Ed के लिए परमानेंट एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन हो गया. तो किसी भी कोर्स में हम लोगों का एप्लीकेशन कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सडनली ईयर आफ्टर ईयर हम लोगों ने बेस्ट रिजल्ट्स किए हैं हमारे टीचर टीम ने, और हेडेड बाय द लर्नड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं. तो उनके लीडरशिप में सब लोगों ने अच्छा काम करा है और द कॉलेज इज बेस्ट रिजल्ट. Okay, sir. So any suggestions you would like to give to the current youth and aspiring students? सजेशन तो ऑफ कोर्स करंट यूथ को लेकर मेरा थोड़ा वरी है, इसलिए कि अभी हाल के दिनों में मैंने देखा कि यूथ में जो पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द लोकल यूथ, ये बाहर जाकर जरूर कुछ टैलेंट दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन जो मास है, मास के अंदर मैं पा रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए डिग्री का तो इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन जो उनको उस डिग्री से नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है. तो वी नीड टू डेवलप ए काइंड ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटेंस. तो ग्लोबल कॉम्पिटेंस तो डेवलप करना ही पड़ेगा, इसलिए कि नाउ वी आर इन ए ग्लोबल नॉलेज विलेज. दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात आज बिल्कुल दिख रही है. तो दुनिया छोटी सी, आज छोटी सी जगह की भी कोई बात पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी तुरंत से आ जाती है. तो वो अब टाइम है अपना ड्रम बीट करने का, और आपके अंदर टैलेंट है तो ग्लोबली आप देखे जा सकते हैं. तो वी नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटेंस. इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ग्लोबल कॉम्पिटेंस डेवलप करो, ग्लोबल कॉम्पिटेंस डेवलप करो. इसलिए कि आप सिर्फ ये नहीं सोचो कि मुझे B.Ed और M.Ed करके बस छोटे से एरिया के अंदर झारखंड में और बिहार में और अपने डिस्ट्रिक्ट में रह जाना है, बल्कि वर्ल्ड इज गोइंग टू वेलकम यू. और आज इंडियन यूनिवर्सिटीज के पास आउट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ग्लोबली देयर टीचर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा में टीचर हैं, इंग्लैंड में टीचर हैं, अमेरिका में टीचर हैं, मिडल ईस्ट में टीचर हैं, मलेशिया में टीचर हैं. आई नो पीपल
तो बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। अब अगर कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो आपको अपनी जगह पर नहीं पूछा जाएगा, आप अपनी डिग्री अपने पास रखे हो। एम्प्लॉयबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यूथ से मेरा ये कहना है कि यू थिंक ऑफ योर एम्प्लॉयबिलिटी, और जो सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है आपके एरिया के, तो वो सॉफ्ट स्किल्स की मास्टरी चाहिए। Good message, sir. So, what do you see your college's greatest strengths? कॉलेज की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मैं ये कहूँ कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर ऑफ सर्टेनली ऑफ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नंबर वन। नंबर टू कि जो मैनेजमेंट का भी जो एटीट्यूड है और जो एट्रीब्यूट है वो ये कि हेल्प किया जाए लोगों की। तो वी ट्राई टू बी वेरी हेल्पफुल विद द पीपल के, वी ट्राई टू एकोमोडेट उनके प्रॉब्लम्स में, वी शेयर, वी केयर, ऑल दोस थिंग्स, ताकि उनका जो एकेडमिक है वो कहीं पर डिस्टर्ब नहीं हो एंड दे मे एक्सेल इन देयर एरिया। तो अपने एरिया में एक्सेल करें, अपने एफर्ट्स को अच्छे से करें। उसके लिए जो सपोर्ट होने की ज़रूरत है, ऑल द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल इन द कॉलेज, they all are having, you can say, they are playing their mentoring role, parenting role कही एक तरह से कि हम लोग we are their local parents, local guardians types, and everybody is a mentor for them. So they all are playing good role. So by this way the institution is helping them out. Okay, awesome. So what are some of the biggest challenges you see both for higher education in general and for your college universities? Again, you see the quality aspect is the most important thing. Yes. So the challenges will remain the same because as the time is passing, the competition level everywhere is increasing. So it's an era of cutthroat competition. So that way to cope up with the thing, students के अंदर भी उतना ही competence आने की जरूरत है, teachers के अंदर भी उतनी ही competence आने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का रोल उसकी वजह से चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू मीट आउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज टू रिसोर्सेज, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, या जो दूसरे टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, और जो कम्युनिटी का जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमको मीट आउट करना है। तो मे बी कि कम्युनिटी इज़ नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग, लेकिन गवर्नमेंट में जो लोग हैं जो देख रहे हैं चीज़ों को, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम लोगों को खुशी होती है कि जब हम लोग जाते हैं कभी किसी ज़रूरत से यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट में, तो लोग इंस्टीट्यूशन को रांची में भी एक्नॉलेज करते हैं। जो नए लोग आए हैं वो भी कहते हैं हाँ लिखा से आए हैं, चले थे गुड इंस्टीट्यूशन। और मैं आपको बताऊँ कि एक RA रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर ने एक दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ भेजा, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को फॉर यू कैन से कि जो एकेडमिक कोलेब्रेशन टाइप की चीज़ होती है। तो एकेडमिक कोलेब्रेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर रह करके दे विल स्टेशन ओवर हियर, और वो हमारे कुछ क्लासेस अटेंड करेंगे। उन्होंने हमारे यहाँ कुछ क्लासेस अटेंड किए। उन्होंने फिर रह करके कुछ ट्राइबल स्कूल्स को भी देखा, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को देखा, कुछ प्राइवेट स्कूल्स को देखा। यहाँ स्टेशन होकर के हमारे अलीगढ़ टीचर्स कॉलेज में उन्होंने देखा। तो दिस वाज एन अचीवमेंट कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी इस बात को समझ रहा है कि इस रीजन में अगर उन्होंने कहीं अपने स्टूडेंट्स को भेजा है तो दैट इज आगे। So how do you tend to establish a healthy relation and environment in your college? Healthy relation and environment in our college. तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी रिलेशंस तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं हेल्दी रिलेशंस, अपने स्टूडेंट साथ भी हेल्दी रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। तो वी आर मेंटेनिंग दैट रिलेशन। जहाँ तक अब जनरल इन्वायरमेंट की बात है, तो अगेन इन्वायरमेंट की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग एकेडमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं पहले। तो वी वांट टू मेक दिस institution as institution in the field of teacher education and want to establish our hegemony in the field of imparting teacher education. So Aligra is playing its role very well, और अच्छा environment बनाया है, of course there is no doubt about it। और further हम लोग इसे उस environment को अच्छा बनाने के लिए we will try out, और हम लोग स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारी बेसिक ड्यूटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग को फील होती है वो ये है कि
हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, उनके अंदर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी उनके अंदर जनरेट कर सकें, और जो उनके एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो उस बात को इस्टेब्लिश करते हैं। और इसलिए हमने टाइम टू टाइम अच्छे एम्प्लॉयर्स को बुला करके इंटरव्यूज़ भी कैंपसेस में कराए हैं बड़े लेवल पे, और काफ़ी लोग उसके थ्रू भी गए हैं, और ऑफ देयर ओन ऑल्सो दे हैव गॉन। अब हम लोग उनके लिए सीटेट की तैयारी और स्टेट की तैयारी और नेट की तैयारी, ये सारी चीज़ों का प्रोविज़न रखा है, तो नेचुरली थ्रू दिस वे दे आर गेटिंग एडवांटेज। और जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो करते हैं, वो दे आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म। अब देखिए 100% स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि हो जाए, तो वो JNU में भी नहीं होता है, वो DU में भी नहीं होता है। JNU और DU में भी जाकर के लोग बर्बाद होकर चले आते हैं। तो जिसने अपने मान लिया है कि उनको बर्बाद होना है, तो nobody can help it out. But otherwise from our end we are trying our best to see कि 100% लोग यहाँ से कामयाब हो जाए। Might be very best. Okay, it was very nice talking to you, sir. Thank you very much. So, thank you, sir.